West Vikings and the University Challengers. It's really wonderful to see all of you here this afternoon, and it's going to be an awesome game this afternoon between the West Vikings and the University Challengers here at Lesundar Stadium, and it's going to be live from the TTAADC official page. And 다리가 나올 때 우선 저도 카드파당매장 DSL TTAADC Super League 2024-2025 나이만이도 다보 레프가 그라운드 레프가 스테디엄 대하고 하이거노 West Vikings versus 오늘 그 챌린저 시리즈 중간에 있는 파리전 벨레이케 그락 팀 주자 팀 보러 팀이 파리전 벨레이케 나이트 플레이 match name it's really awesome to see this player. Both the teams really looking strong and they're already getting started. And so here we go with the first kick. Theo hai cái buổi sáng cho các bạn ở sân bay đó rồi cô cả một bác sĩ không ấy đó cô tan cả một trying to form một group này sân bay đó rồi West Vikings from the defender rồi cô lấy cái strong cả ham phim mà thì ở ground rồi kia mà wide na zoom tentative car for one cái cô lấy cái expert cái bộ nút đó referee signal lấy cái kết hợp với trong này với cái nó So and now opportunity West Vikings dipakai, but for sports and chances, outland chances, ini tabuk show ni lah West Vikings dipakai, and kalau kita kan kenalai tu, and West Vikings ni hengai kalau supportive upon team ramai, saya apa hengai nomor sekarang kenalai tu, ball pass kenalai kalau kita nak supportai bor. And Dr. Wilson, Marabong Naimani the world live at TTAADC official video. I take on social media platforms and YouTube drone of Naimani. Dr. Wilson, box point হিসাবে বড় পয়েন্ট হিসাবে বড় আমি এটা ভালো জায়গা পাইছি রেখে সমস্যা খাবো ভিতরে এই গোল স্কুপ দেখানো বড় যত টাইট হয়ে যাবো ফার্স্ট হাফ হলো যারা actually audio এটাতে বল দিতেছি ক্যামেরাটা বড় আমি সেকেন্ড হাফ বন্ধ এটা তো লেঙ্গার নাই and energy like low ngay आता है वो stamina रो आते कमर नहीं खाता है और बड़ी कुल नहीं first half रो बना बड़ा जाने जा कैसा 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 वीडियो ले जाते हैं काम push नहीं तुम्हारे काम कैसा हुई और गेम ना तुम्हें माने तो तरह के खातों कपड़ा में भी तुम्हें करो energy हम भी तो energy बल्कि कहीं पर थकती ना नहीं कभी तो wireless कहीं पर थकती ना काम push नहीं करो and game से बल्कि ना तो कहीं की में भी चीज़ों बल्कि ना तो game से हम कभी तो ini ada logo kan pohon semua suruh kita topik and saya logo ini kan malda order malda oh yang mereka tu charge boy di oh di tadi Milton Debroma Norni host by Popo by English play our hacker on সব লই যাচ্ছে চাপ নাই চেষ্টা করো মতো উইসেল বাজবো চাপ নিও না যত ভাই ভাবি কিছু করবার নাই এটা জানে মালিক জানে नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल इस लेखुका के मैदान में आप सबका दर्शक जहां ऑनलाइन ऑफलाइन जो जहां देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है
बहुत ही अच्छे हेड यहाँ पर, लेकिन रोका गया डिफेंस के द्वारा। कोई चांस नहीं। दोनों ही टीमें काफी लंबा अपना तजुर्बा रखते हैं, क्योंकि काफी दिनों से बहुत सारे मैच खेल के आ रहे हैं। तो उनको भी और वेस्ट विंडीज दोनों में काफी धारदार हथियार रखे हुए अपने पास, और ये टीमें बहुत सारी मैचें खेली और तजुर्बा भी रखती है। अब देखते हैं इस मौके को कितना भुना पाती है वेस्ट विंडीज, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मौका मिला है। इस मौके को कितना काम मिलेगा। अच्छा थ्रो यहाँ पर, लेकिन अच्छी गोल कीपर की ताजगी देखिए, हाथ से रोका गया। दोनों टीमें अच्छी दावेदारी रखी है। यहाँ पर कौन आज इस मैदान पे अपना फतेह का झंडा लेकुंडा के मैदान पर लेके जाता है, ये देखना है कौन यहाँ अपना झंडा गाड़ता है। क्योंकि अनुभूति बहुत सारे खेलों में कई अच्छा प्रदर्शन दिया है, 3-3 गोल भी नाम है इनकी टीम का। आज देखना है कि वेस्ट विंडीज को किस तरह से वो मात देती है, क्योंकि तजुर्बा आपको बहुत दूर तक ले जाता है, बहुत दूर तक आप लेके यहाँ तक आ रहे हैं। और मैदान अच्छा है। इससे पहले 82 माइल्स में गए थे, 82 माइल में, वहां से भी थोड़ा ठीक ठाक मैदान ये है। इस मैदान में काफी काम भी किया गया है, मिट्टी डाला गया है। के एक प्लेयर को जख्म लगी है, क्योंकि खास नहीं, ठीक हो जाएंगे। दर्शक भी देखेंगे तो दर्शक बहुत दूर दूर तक यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं हमें, कोई पेड़ों के बीच में भी छुपे हुए हैं। और आज वेस्ट विंडीज अपने नाम करती है या अनुभूति देता है, क्योंकि कोटि कोटि लोग जो प्रशंसक जो है वो जो है देखते हैं आज फतेह किसके नाम होती है। शोरमिता बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका देने के लिए। शोरमिता आप बोलिए कुछ। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, खुलो। आज हम है यहाँ इस लेफुंगा देखा था पिछले 2 मैचों में वेस्ट वाइंडीज ने बेहतरीन जीत हासिल की थी अपने पिछले 2 मैचों में, और इस बार भी उन्हीं के द्वारा पहला गोल थे कि जी हाँ, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। TTAADC प्रेजेंट्स दिस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट। फुटबॉल यूं तो एक जाना माना स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट हमारे वर्ल्ड वाइड, सब इसको पसंद करते देखते हैं। पूरा में फर्स्ट टाइम TTAADC प्रेजेंट कर रहा है, और उनके द्वारा इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है कि फुटबॉल को हम प्रोत्साहन दे, जो फुटबॉल लवर्स है उनको प्रोत्साहन दे, उनको और पढ़ने का मौका दे। तो आप देख पा रहे हैं कितना लंबा लंबा शॉट यहाँ खेला जा रहा है, लॉन्ग शॉट दिया जा रहा है हमारे इस टीम के द्वारा। वेस्ट विंडीज आज पूरे मजबूत शॉट में कि हाँ, हमने जो रेपुटेशन बनाई थी 2 मैचों में जीतकर, आज वो रखना ही है, और आज का मैच जीतना ही है। वेस्ट वाइंडीज आज पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में है, स्टेडियम में है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आज उतरे हैं। पर वही अगर देखा जाए ऊनाकोटी चैलेंजर्स को आज थोड़ा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है ऊनाकोटी चैलेंजर्स का जो मैच था, लास्ट का एक ड्रॉ हुआ था और एक में हार गए थे सिपाही चुना टाइगर्स से। तो आज का मैच उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज का मैच अगर वो जीते तो स्कोर बोर्ड में उनका नाम आ सकता है एक लेवल पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बेहतरीन दर्शकगण है आज हमारे साथ जुड़ी हुई, अलग अलग जगह से देख रही है। एवं मैं एक दर्शकों को देख रही हूँ, वो पेड़ के ऊपर से देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लव है फॉर दिस स्पोर्ट, फॉर दिस फुटबॉल। नो डाउट आज की इस मैच के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं। तब से मैं सोच रही थी कि कौन सबसे पहले गोल बनाएगा, और यहां हमें पहला गोल ही मिल गया वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा। बट मुझे लग ही रहा था उनके द्वारा एक अलग स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलेगी, पर उनके सेम स्ट्रेटेजी से भी आज वो एक गोल बना चुके हैं और फर्स्ट हाफ में भारी पड़ चुके हैं।
तो आशा करते हैं कि कुछ अलग आज देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स अलग है एंड उनाकोटी चैलेंजर्स अपना एक अलग रूप लेकर आएंगे ताकि जीत पाए। और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिस, हमने कहा था जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, इस जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको पकड़ लेना है और एल्स वो हाथ से निकल जाएगा। तो आज देखना है कि उनाकोटी चैलेंजर्स में है कितना दम और कितने अपॉर्चुनिटीज वो साथ ले सकते हैं। यूं तो मिथुन जी मैं काफी देर से सोच रही थी कि हमारे वेस्ट वाइकिंग्स आप एकदम पहले से देख रहे हैं, काफी जज्बे में, काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट उनाकोटी चैलेंजर्स? क्या लगता है आज कुछ अलग कर पाएंगे उनाकोटी चैलेंजर्स? सोरोमिता देखिए, इससे पहले जो मैच हुआ था ना उसमें वेस्ट वाइकिंग्स का जो मैच था वो सबसे दमदार मैच था, क्योंकि नेथनियल जो है वो बहुत ही असरदार साबित हुए थे। अकेले 2 गोल लागे थे वो, और 2 गोल गोमती टस्कर्स के विरुद्ध उन्होंने दागे थे। और बिलाश देबबर्मा काफी उम्दा किस्म के प्लेयर है, अच्छे पासेस खेलते हैं। और नेथनियल उन पे सबकी नजर रहेगी, जो वेस्ट वाइकिंग्स के जो दर्शक, जो उनके फैन हैं, उनकी नजर रहेगी नेथनियल पे आज, क्योंकि बहुत जितने मैच खेले हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। और ये रफ्तार देखिए, ये है रफ्तार नेथनियल की। आप मैदान जो है ऐसा मानो वो 20 गज के मैदान को 5 गज का कर देते हैं जब वो रन करते हैं। तो यहाँ पर गोमती के लिए बहुत ही उनाकोटी के लिए, सॉरी उनाकोटी चैलेंजर्स के लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो झुकाव है वो वेस्ट वाइकिंग्स की तरफ है। उनाकोटी को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जबकि 1 गोल ऑलरेडी हो चुका है। और ये मेहनत को रंग लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस मैदान पर, और वक्त बहुत है, मिलेगी आपको। चांस मत खोइए, हर चांस को काम पे लगाइए, क्योंकि वाइकिंग्स मायने में, क्योंकि जैसे मैंने बिलाश देबबर्मा जो काफी उम्दा उस टाइम पे जो पासेस थे उनके नेथनियल के साथ जो जोड़ी थी वो रंग लाई थी, और उस रंग को सामने लागी 3 गोल दागे थे दोनों ने मिलके। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मिल्टन जी इस मैदान पर, लेफूंगा के मैदान पर, और शायद यहाँ पर हल्ला तो हुआ है जी, नहीं देखिए मौका आपको नहीं खोना है। मिल्टन जी क्या बोलेंगे आप ये मौके? Yes, this really was an opportunity for the Unakoty challengers, but I don't know what exactly is the referee talking about. Let's see what happens, but this may not be a goal. What a save by the team, and also by the goalkeeper at the end. The way he has actually saved the ball from scoring really made it a sense. Him being the goalkeeper. Oh my God! And this is a goal for the Unakoty challengers, and 1 equal in the first half for both the team. And it's really awesome to see both the team playing so good at this point of time. Belai kan as to play borok thanglai dong tai John kaisa score play oro borok goal play ga tai equal oro yellow card tiklai jangnani chances phiaba yellow card angai phan mangkamo phia razak liya tai aba hai keno belai ke kam ke thanglai dong. Awan bagino belai kan at proklay bor tau thngi tongo duita team no kone team no belai ke strong Unakoty challengers tai West Vikings belai na to play kone team no thanglai dong oro sanaklayo West Vikings rock borni home ground no thngi tongo tai aba hai kan Unakoty challengers rock belai ke haksal ni phai tini oro thngi bor pai thangi mani anga kai belai ke laching cha hai bong nai borok bo chai to lai tongo sabo busudar tike स्कोर सही मानो नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स एंड उनाकोटी चैलेंजर्स। यूं तो हमें डर था क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स का ऑलरेडी 2 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की हुई है, साथ ही साथ इस मैच में भी पहला गोल ही उनका था, तो एक चैलेंज आ गया था उनाकोटी चैलेंजर्स के लिए। यूं तो चैलेंजर्स के नाम पे है कि हाँ हम चैलेंज देते हैं, बट उनके लिए आज एक चैलेंज था कि आज उनको जीतना है। बट कितनी अलग बात है कि फर्स्ट हाफ में ही 1 ईच, जी हाँ फर्स्ट हाफ में ही 1 इक्वल हो चुका है दोनों ही टीम के द्वारा। एंड अब मानना पड़ेगा कि दोनों ही टीम में एक अलग प्रोत्साहन है, एक अलग कॉन्फिडेंस है कि आज का मैच कुछ अलग रंग लाएगा। यूं तो वेस्ट वाइकिंग्स के प्रत्येक
प्लेयर में मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, दे आर हैविंग दिस अमेजिंग अटैकिंग वाला थिंग कि वो अटैक अच्छे से कर सकते हैं, पर वहीं हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स की तरफ हम देखें तो उनका भी डिफेंस कुछ कम नहीं है। इनकी तरफ से भी हमें अलग अच्छी तरह से डिफेंस मिल रही है। तो अब हम देखेंगे कि इस फर्स्ट हाफ में कौन भारी पड़ेगा। सबसे पहले था 1-0 एंड नाउ 1-1, जी हाँ 1 ईच। तो अब देखना है कि कौन पहले हाफ में ही भारी पड़ जाएगा। मुझे तो काफी डर लग रहा है मिथुन जी, क्या होने वाला है आज, क्योंकि इतने मैचों में जहां तक मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, वेस्ट वाइकिंग के तरफ जो भी थे उनका एक कॉन्फिडेंस अलग है, उनकी तरफ से एक अलग कॉन्फिडेंस आज भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 मैचों में वो जीते थे, तो आज भी उनका रहेगा कि आज हमें ही जीतना है, हमें ही बाजी लेनी है। पर वहीं अगर ऊनाकोटी चैलेंजर्स वाइकिंग्स को उन्होंने हराया है, तो देखना अब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या होने वाला है। और यहाँ दर्शक देख सकते हैं, हमारे दर्शक आज काफी ज्यादा एक्साइटेड है, अपने अपने एक कह सकते हैं सस्पेंस है कि क्या होने वाला है। और वेदर काफी सनी है, तो सभी ने अपने सर को ढक रखा है कि सब कुछ अच्छे से हो, मतलब मैच मिस नहीं होना चाहिए, दिस लाइव मैच ये मिस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमें लाइव देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म, हमारे पेज से जो हमें फॉलो कर रहे हैं, धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। एवं आशा करते हैं कि अगले मैचों में, अगले फ्यूचर मैचेस में भी आप हमारे साथ रहेंगे। डू फॉलो अस इन आवर ऑफिशियल पेज TTAADC। तो अब देखना है कि कौन किसका पलड़ा भारी होगा, ऊनाकोटी चैलेंजर्स का या फिर वेस्ट वाइकिंग्स का। आज वेस्ट वाइकिंग्स है समथिंग डार्क रेड एंड ऊनाकोटी चैलेंजर्स है इन दिस येलो ग्रीन यूनिफॉर्म। जर्सीज में हम देख पा रहे हैं जैसा कि वेस्ट वाइकिंग्स का हमारे पास जितने भी नेम्स हैं और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, उनमें प्लेयर नैथेनियल उनका पलड़ा हमेशा the ऊnaकोटी Challengers really putting pressure to the West Vikings, and awesome to see such match. But yeah, it is needless to say that the ऊnaकोटी Challengers really putting their heart and soul in the game today, and fantastic game that can be seen by the team here. Lucky it is for the West Vikings again. The defenders really need to work harder, and I'm sure they can make another score before the second half. It's about 10 minutes to go, and the first half will the referee will blow the whistle. But yes, the West Vikings struggling out there with the players of the ऊnaकोटी Challengers, and not being able to pick the ball, but they really need to pass the ball between their players and do it really well this time. What an unfortunate for the West Vikings today. They need to really they really need to look into the players, who can push the players. The strikers are doing great, but the defending the defenders really seems to be weak this time. क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स ऑलरेडी उनके अटैक के लिए ही जाना जाता है। मिल्टन जी, उनके अटैक इतने अमेजिंग होते हैं कि मानना पड़ेगा, पर आज उनके अटैकिंग के साथ उनको डिफेंस में भी शायद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उनका डिफेंस नहीं रहेगा अच्छे से तो शायद यहां से हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स उसी का फायदा उठाकर एक ना एक गोल वापस कर ही लेंगे और उनकी तरफ से एक बेहतरीन गोल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल ऊनाकोटी
चैलेंजर्स थोड़े भारी हैं वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर, एंड वेस्ट वाइकिंग्स को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा जरूर, ताकि एक और गोल हो जाए उनका। टाई हो जाने से एक चीज यहाँ हो जाती है मिथुन जी, कि टाई हो जाने से आप दोनों का एक रहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस बना रहता है कि चलो हम हारेंगे नहीं, एक रहता है कि हाँ हो जाएगा चलेगा। एंड यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर एक ये है दबाव कि उनका पहला 2 मैच काफी बेहतरीन था, 2 मैच में वो जीते। अब अगर आज उनका टाई भी रहे तो उनको शायद इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। पर यहाँ अगर उनाकोटी चैलेंजर्स टाई में हारे तो उनका वो स्कोर बोर्ड में सेम उनका रहेगा कि नहीं हुआ नहीं, तो यहाँ शायद एक गोल, ये शायद गोल नहीं है। यहाँ बेहतरीन कोशिश हमारे दोनों टीम्स के द्वारा, आज मानना पड़ेगा कि हमारे दोनों ही टीम इतना सनी वेदर है, धूप एकदम सर के ऊपर है, पर फिर भी दोनों की मेहनत, दोनों टीम की मेहनत, दैट्स रियली अमेजिंग, बिना थके। Yes, Soromita, you see today the West Vikings really don't seem to be having a good opportunity, or I mean not opportunity, but not a very good day for them. They really had the opportunity to score in the previous shot, but what an unfortunate day. They really couldn't make the goal over there, and it's difficult if they waste the time in the first half, and I think the Unakoti Challengers really putting more pressure to the West Vikings today, and the way they have been playing the ball within the players, it's really awesome to see them pass the ball really nice and short. And so not too many long shots passing the ball between the players. It's awesome to see them play such a strategic game today here at Lefungo Stadium. This can be a goal for the West Vikings, but let's see what happens. And what an opportunity. Let's see what happens. And there it goes. But no, this is a corner kick. This is a corner kick for the West Vikings. What an opportunity again. But yeah, there needs to be more player between, and they can sort of score their second goal. यहाँ गोलकीपर को मानना पड़ेगा, हमारे उनाकोटी चैलेंजर्स के गोलकीपर सोलोमन जी को, डार्लोन जी को, क्योंकि उनके द्वारा ये रोका गया है। एंड गोलकीपर अगर चौकन्ना रहे तो डेफिनेटली गोल नहीं हो सकता अगर गोलकीपर चौकन्ना रहे। पर वही एक बेहतरीन कोशिश फिर से वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा। एक्चुअली मिल्टन जी, they really started very well. West Vikings, they really started with a very good, strategy and a positive way with one goal. But now it seems like कि हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि अब उनके दिमाग में है कि नहीं, कैसे न कैसे एक गोल चाहिए, जिस कारण उनकी एग्रेसिवनेस के कारण शायद अभी उनका वो जो गोल है वो बार बार मिस हो रहा है, जो मुझे लगता है आई एम फीलिंग लाइक कि वहां तक जाते जाते चूक जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर्स। This actually happens when the players are in big pressure, because they know that they could only score one. They start positive, that's very nice, and later the Unakooti also put in one goal, then consecutively another one. So looking into the way that they are playing, the West Vikings really are having a hard time, and also because the pressure is on them that they are playing on the home ground today, it becomes very difficult for them to carry on with the kind of pressure that they are in, and so I guess they are lacking some kind of focus in the ball, and so that if they are actually focused, they could actually make another score even before the first half, so that they become too equal. Right now the Unakooti Challengers with 2 and West Vikings with 1 only as of now. They need to play positively, not really push themselves so hard in the game, so that they can actually focus the ball and put the ball into the box. And what a save by the
goalkeeper there with from Solomon of the Unacotti Challengers. He's doing really great today, and it's a corner kick for the West Vikings right now. And so Sormida, let's see what happens this time. This is another opportunity for the West Vikings, right? बिल्कुल 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 सर, यहाँ मिल्टन जी आप एकदम सही कह रहे हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ बार बार गोल रोका जा रहा है। आप वेस्ट वाइकिंग्स को देखिए, उनकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। बार बार उनकी मेहनत दिख रही है, झलक रही है। पर वही अगर आप देखें, आज उनाकोटी चैलेंजर्स फुल्ली तैयार होकर आए हैं कि आज तो इस मैदान में उनको झंडे गाड़ने ही है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से पास करके लेकर गए थे वो अपने गोल करने के लिए, पर यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा फिर से वो बॉल ले लिया गया। एंड यहाँ फिर से उनाकोटी चैलेंजर्स चाहते हैं कि नहीं, अब तो ये गोल होकर रहेगा हमारी तरफ से। और इस बार फर्स्ट हाफ में उनका एक और गोल हो गया तो ये 3-1 हो जाएगा, मतलब स्कोर 2 का डिफरेंस में आ जाएगा और ये डिफरेंस थोड़ा भारी हो जाएगा कवर करने के लिए इन द सेकेंड हाफ। क्यों मिथुन जी? जी बिल्कुल। जबरदस्त तरीके से, लेकिन आज उनाकोटी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए उनके जो दर्शक है, क्योंकि उनके फैन ने जो चाहा उनसे बढ़कर करके दिखाया है। उनाकोटी ने वेस्ट वाइकिंग्स को जिस तरह से मात पे मात दिए जा रही है, इसलिए तारीफ बनती है। कद काठी के प्लेयर है एक ही तरह के, और इस गोल था और वेस्ट वाइकिंग्स जो है वो 3-3 गोल भी दे चुकी है, जहां पर वो उसके एक प्लेयर है नेथनियल जिस पे नजर रहेगी सबकी। लेकिन प्रदर्शन आज सबकी जो निगाह है वो उनाकोटी पर है, किस तरह का प्रदर्शन करती है और किस तरह से अपनी टीम को पॉइंट्स दिलाती है। और हाँ, आशा करेंगे कि एक अच्छे खेल का यहाँ पर आज छाप छोड़ जाए उनाकोटी चैलेंजर्स। नहीं, मैं नहीं मानती, यहाँ मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि सभी की नजर उनाकोटी पर ही है। उनाकोटी चैलेंजर्स बेहतरीन कर रहे हैं मिथुन जी, बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं, पर मेरी नजर आज थोड़ी बहुत जा रही है यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर भी, क्योंकि उनका प्रदर्शन आप देख रहे हैं आज थोड़ा वो कमजोर पड़ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा उनको प्रेशर पड़ गया है। उनको लगा नहीं था शायद कि उनाकोटी चैलेंजर्स इस तरह से उभर कर आएंगे, पर आज वो उभर कर आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ है। तो डेफिनेटली यहाँ नजरें दोनों टीम्स पर ही सभी की है। दर्शकगण आप देख पा रहे हैं सभी के सर के ऊपर हाथ है कि आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। क्यों मिल्टन जी? Yes, actually, you know, Unacotti actually really have good players between in the team, and because most of the players in Tripura you will see either they are from Killa area or to you will see most of the football lovers are towards the northern part of the state, and also towards Gomoti and Sabrum areas. So they really have good players, no doubt in that. But the West Vikings today actually need to show some more game in the field, because they also have players from outside, and I guess there's going to be a break in some time, but the West Vikings
really need to work harder this time. It is needless to say that they also have good players. Some of them are also from outside the state and are playing really good. But yes, it is a game, and there's going to be somebody who's going to win and some team that's going to lose the game. And so game is game. You cannot have any perfect prediction on them. But it is needless to say, both the teams are playing really fantastic and marvelous today. It's a game between both the strong team. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Kayo na sini. Ani
खूबसूरत प्रदर्शन हमारे इस खेल मैदान में सांस्कृतिक अनुष्ठान के द्वारा हम संस्कृति को भी इस खेल मैदान में लेकर आते हैं। यही सबसे अनोखी बात है इस TTAADC प्रेजेंट्स सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का। तो अब हमारा सेकेंड हाफ होने जा रहा है, जहां अब हमें देखना है कि कौन बाजी ले जाता है, क्योंकि इस सेकेंड हाफ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले हाफ में हमने देखा ऊनाकोटी चैलेंजर्स भारी हैं अभी वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर, एवं अब देखना है क्या वेस्ट वाइकिंग्स उनको जोरदार टक्कर देती है या आज के इस मैच को हम माने कि उनका आज दिन नहीं है। ये तो हम जरूर उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। आज का ये दिन आपके लिए हो सकता है अगर आप थोड़े और अपॉर्चुनिटीज को काम में लगाएं। वहीं ऊनाकोटी चैलेंजर्स मस्ट से यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। क्यों मिथुन जी? शोरूम में देखिए मसला उतना जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं, क्योंकि जिस तरह से ऊनाकोटी चैलेंजर्स अपना चैलेंज फेंक दिया है एक तरह से, मान लीजिए वेस्ट विंडीज की तरफ, उससे उभरना मुश्किल है। लेकिन अनिश्चितों का खेल है, अनिश्चितों का है सब कुछ, यहाँ पर निश्चय कुछ भी नहीं है। तो आप आखिर के पल तक आपको गिनना पड़ेगा। लेकिन बात यह है ऊनाकोटी जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का अटैक अब तक यहाँ पर दिखाए हैं प्रदर्शन में, बस उनका जो प्रदर्शन पे आप ध्यान देंगे ना तो आपको लगेगा कि उनका परसेंटेज और एडवांटेज कितना था, हाई था आगे की तरफ। अटैकिंग परसेंटेज जब आपका गोल की तरफ ज्यादा रहता है तो मुश्किल उस ऑपोजिट टीम को हो जाता है, जिस तरह वेस्ट विंडीज का हो रहा है। खेल वो भी अच्छा रही है, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर उनको भी काफी भारी है और काफी मैचें खेल के आ रही है, पहले भी 2-3 मैचें खेल के आ रही है, अच्छा अनुभव रखता है, एक गोल। और वेस्ट विंडीज के जो नेथनियल है उन्होंने पहले 3 गोल जो उस टीम को हुए थे वो उन्हीं ने दागे थे। अच्छा पास भी था उनको जो दिया था एंताम्बी ने। तो इस तरह से दोनों ही टीमें मजबूत है आज जिस तरह से लग रहा है। लेकिन मेरा मानना है शोरस्मिता कि इस मैच में पलड़ा जो है वो ऊनाकोटी का भारी है, भारी नहीं काफी भारी है। वजन जिसको कहते हैं वजन की अगर हम बात करें तो हमारे दोनों ही टीम आज काफी फिट लग रहे हैं मुझे। मिथुन जी मेरे हिसाब से आज कुछ तो अलग बात है। आज हमारे दोनों टीम्स का एक जबरदस्त प्रदर्शन देख पा रहे हैं दोनों ही टीम की तरफ से। ऊnaकोटी challengers putting really strong challenge to the West Vikings. It's really difficult to predict the game because there can be change in the strategy, the way they play, and maybe they will be able to score another 1 or 2 in the second half, and it's going to be really awesome to see this match because both the teams seems to be really strong, understand the game. They are already experienced in the kind of field that they are playing right now. This field seems to be really better than some of the playground that we have seen in Bira Ismail as well. So I think this ground is much better compared to the ground that we have seen in Bira Ismail. So this time I think the players really had the advantage of the ground, and also the West Vikings are they are thinking what to do next, and they're making a strategy in the field, talking to every players out there. It's becoming a really beautiful game today. And the weather, you see, the sunshine, it's still there, and somewhere or the other there is a little bit of shade, but there is still opportunity for the players to play really well. And them warming up before the game, it's really a positive vibe. And
the Unukudi challengers coming up with such a positive vibe today that they have made 2 scores in the first half. The second half we are not sure who's going to do well, but let's see what happens. And it's going to be really awesome to see. All the football tournaments and all Unukudi challengers so Belai ke strong team te aba haikano borok tini duita goal ruoi sekangai tongo kaisa goal bai ke tai kaisa goal score khaika West Vikings so aun bai borok bor ni bagi Belai ke difficult ngai tong nai Belai ke borok ma chai tong nai borok katal tai kaisa ba kaini score khlaima gang ke borok sekangai thangi manai yang ke tini West Vikings rock actually pai aphanangani chances tongo so Unukudi challengers only, Bakakti Belay player kam sing Simon or Bornang, Rogo, Belay football lovers, Tongo, Belay football Tonero Tongo, Tayaba Haikano, Bornarne players of experience, Avanabagino, or Tumuni, Vicente Sizago, the Borok, Belay energetic, Belay tactfully borok in any game. So the second half begins in just a while. And so, ladies and gentlemen, you're watching this live from the TTAADC official page and handle. And so it's going to be really a beautiful match. All the more that we see here from Lefunga Stadium this afternoon. बिल्कुल मिल्टन जी एक चीज आपने शायद नोटिस किया अभी सेकेंड हाफ में हमारी दोनों ही टीम काफी भरपूर एनर्जी के साथ आए हैं जहां की आपने देखा वेस्ट वाइकिंग्स उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई वो फील्ड में ही बनाई उन्होंने अपने पोजीशंस फील्ड में ही ले लिए तब वो वेट कर रहे थे कि कब उनाकोटी चैलेंजेस का बातें खत्म हो उनका कह सकते हैं उनका जो प्लान्स वो खत्म हो इसके बाद वो अपनी तरफ से जुड़ जाएं और लग पड़े बस वहीं अगर आप उनाकोटी चैलेंजर्स को देखें तो उनाकोटी चैलेंजर्स टोटली रेडी है उनकी जो है उनका जो वो टीम के साथ जो उन्होंने एक प्लान बनाया स्ट्रेटजी बनाया उसके बाद जो उनका रहा वो एनर्जी रहा दैट वाज अमेजिंग तो अब लग रहा है कि कुछ तो अलग होगा क्योंकि इस सेकेंड हाफ में हमें पता चल जाएगा कि किसका पल्ला किसके ऊपर भारी है तो यहाँ एक फ्री किक मिल रहा है क्यों देखिए इसका फायदा तो मिलेगा लेकिन अब जो रणनीति बाहर से लेकर अंदर घुसे है ना उसका फायदा उठाना पड़ेगा अभी ओनोकोटी हो या ओएस विकिंग्स दोनों को सूझो येलो कार्ड ये लक्षण कुछ ठीक नहीं है क्योंकि रेफरी जो है वो आपकी गलतियों को ढूंढते हैं और कुछ सुधार करते हैं ताकि आप आखिरी मैच में आने वाले मैचों में इसका सुधार कर सके येलो कार्ड यहाँ पर पहला आज का येलो कार्ड तो देखना पड़ेगा कि ये जो किक है इसको क्या काम पे लगा पाएंगे ये फ्री किक से क्या गोल हो पाएगा क्या एक अंक और खाते पे जुड़ेगा तो नजर रहेगी सबके मैदान पर तो फिर इस खेल का जो लेखा जोखा है अब तक 2-1 से ये खेल आगे निकल रहा है तो उनोकुटी भारी है आज वेस्ट वाइकिंग्स पर नजर रहेगी जेबेंतिया पर नजर रहेगी सोलोमन पर नजर रहेगी कैल्विन पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं देखते हैं नैथनियल ये सब मिस नहीं होता है देखिए अभी भी नैथनियल और तांबा इन लोग ऐसे प्लेयर हैं जिन पे नजरें हमारी पहले भी थी और आज जो पासेस थे जबरदस्त थे और उसका नैथनियल ने बहुत अच्छा फायदा उठाया था क्या इसको क्रॉस कर पाएंगे ये 6 खिलाड़ी के ऊपर से या किस तरह का ट्रिक आजमाते हैं नैथनियल ये देखना आज मैदान पर होगा नैथनियल तैयार यहाँ पर किक के लिए बहुत ही अच्छा किक पीठ पर लगी लेकिन निकल गई बाहर बहुत ही अच्छी यहाँ पर ड्राइव निकल जा रहे हैं पीछे से बॉल को लेकर देखते हैं क्या आउट थ्रो इन होगा अभी इस तरह के जो मसले हैं ना इसका फायदा उठा सकते थे नैथनियल लेकिन चलिए काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं 2 गोल उनके नाम है पहले भी तो अनुभव को कहां काम पे लगाते हैं विकिंग्स ये देखना है आज क्योंकि चैलेंजर्स ने अपना चैलेंज तो छोड़ दिया है क्या कहेंगे मिल्टन जी आप इस बारे में Yes, actually, Nathaniel has actually made a really good impression in the previous games and is doing really great this afternoon as well. But all the eyes on this afternoon.
it's becoming difficult for the West Vikings now. And since they have come up after the break, it's becoming a really beautiful way that they play, and the team really put up to the spirit. And the left wing striker, number 19 jersey, is trying to push into the ball, but no, he really couldn't do that at this point of time. And so now the goalkeeper is actually, shooting the ball, but it's in the air, and probably the Unagudi Challengers again picking up the ball. But yes, the West Vikings need to work harder, and it's becoming really, aggressive this time. So again, what an unfortunate for the West Vikings. They really couldn't pick the ball, and it's the throw-in for the Unagudi Challengers. Milton G. Taken out of the game for now, but yes, it is always important to not waste. Otherwise, it's going to be a negative impact for the West Vikings today, and so they need to make more changes in the way they play in the team. मिल्टन जी, जिस तरह से भी धीरेन्द्र वर्मा भी घायल हुए हैं, ये लक्षण अच्छे नहीं है. फिर से यहाँ मौका बन सकता है वेस्ट विकिंग्स के लिए, लेकिन मौके को जरा यूज नहीं कर पाए. मिल्टन जी देखिए, जिस तरह से जख्मी हो रहे हैं, जिस तरह से इंजर्ड हो रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है ओनुकुटी के लिए. ये इसको चेंजेस करना, आपको थोड़ा उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा. क्या कहते हैं आप इस बारे में? Absolutely, because if the players are being injured at this point of time, it is going to be difficult for them to, have that spirit and the communication that they had even in the beginning as they started the game with a positive vibe. But what a fantastic game today. It's really awesome to see the way they, both the team are doing such an awesome game in the field. And so I think there has to be more understanding between the players in the team from the West Vikings, because they really need to make the score this time. There's no time without wasting much time. They need to actually pull the ball into the box and then make their score. But what an awesome job by the goalkeeper from the Unagudi Challengers, Solomon, doing great in the field, showcasing all the talents and all the skills that he's learned from the experiences that he had in the past. And so likewise, it is seen that the West Vikings goalkeeper, seems to be a little weaker today. He's been falling quite often in between the game, and so that's not a good sign for the West Vikings. But yes, here is a foul. Here is the foul. And it's going to be a foul kick for the West Vikings. That's an advantage that they can push the ball into the box and then, make the other score after the second half. But let's see what happens in the game, because there can be any change any time into the game, because it's very strong team from both the sides that we can see. What a shot into the box, but no, it went over the goal post, and it's going to be a goalkeeper kick at this point of time. Mithun, let me also ask you something. Looking into the kind of field that we had today here in Leftinga Stadium, what do you say? There should be more stadiums like this, more energetic, and what an audience today you see. What an audience, so much of people around the ground watching the game. All are enthusiastic and are looking ahead to, support the team that they love so much. And since they have performed in the previous games as well, they also expect the same in this game today. What would you say? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर फुटबॉल के जो यहाँ पर लवर्स हैं, वो आपको देख के लग रहा हो कि मैदान पे किस तरह की मेहनत उन्होंने आज की है. यहाँ पर मिट्टी डाला गया है, इससे लगता है कि वो फुटबॉल से कितना प्रेम करते हैं. TTAADC द्वारा ये आयोजित जो सुपर लीग है फुटबॉल का, इसके लिए इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, और ये मेहनत रंग लाएगी तब जब ये मैच एक अच्छी जगह पहुंचेगी और अच्छे प्लेयर यहाँ से निकल के बड़े बड़े मैच, बड़े बड़े नेशनल मैचेस खेलेगी. हमारा त्रिपुरा से प्लेयर निकलेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है. यहाँ पर शायद ऑफ साइड का इशारा साइड लाइन अंपायर रेफरी का.
तो बढ़िया जो आपने निर्देशन दिया ना इस चीज का, यहाँ पर ये है कि फुटबॉल, यहाँ पर बहुत सारे मैदान है फुटबॉल के, छोटे बड़े। यहाँ पर हर शाम को या सुबह, आप अभी के मौसम पे जाएंगे तो हर मैदान सुबह प्रैक्टिस होती है बाकायदा। सब यहाँ पर बच्चे गाड़ी लेके, स्कूटी लेके, बाइक लेके पहुंच जाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आगे भी आपको एक स्टेडियम मिलेगा। तो यहाँ पर फुटबॉल जो है ना, ये आप सुबह और शाम जब जाएंगे ना, वहां पर मैदान पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चोटिल हुए 21 नंबर के खिलाड़ी ओनोकुटी के वनमालसोमा डालोंग, तो ठीक हो जाएंगे, ज्यादा जख्म हुए नहीं। चलिए भी ज्योति सर अपना घड़ी देखते हुए कि कितना टाइम यहाँ पर ले रहे हैं ठीक होने में, क्योंकि इस टाइम को वो जब 90 मिनट्स के बाद शायद उसको भी ऊनाकोटी चैलेंजर्स को अपनी जीत बरकरार करनी है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि हाँ, मुझे अपना जीतना ही है, हमारी टीम को जीतना ही है। तो एक और गोल शायद उनको चाहिए। और जैसा कि मिल्टन जी ने ऑलरेडी कहा था कि अभी अगर वो चाहे तो वो टाइम पास की तरफ भी जा सकते हैं कि हम चलो पास करते हैं टाइम को, सो दैट जो हमारा है गोल 2-1 वो रहे, और है गोल 2-1 वो रहे, और एल्स 3-1 हो, इससे ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर हम पास नहीं कर रहे हैं टाइम, तो किसी भी क्षण आई रिपीट, हमारा वेस्ट वाइकिंग्स अलग मोड़ ले सकता है और गोल कर सकता है। वही मैं देख रही हूँ वेस्ट वाइकिंग्स के जो गोलकीपर है आकांक्षु जी, वो भी काफी सतर्क हैं कि अब मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है कि अब और एक गोल हमारा ना हो ऊनाकोटी चैलेंजर्स के द्वारा। The team coaches of ऊनाकोटी Challengers, Lalming Thanga Dalong, is really, have come up with a very strong team. And again, it's a goal for the ऊnaकोटी Challengers. What a game this man is doing. They've been doing really great in the field today. And the players are really awesome. And so the goal scored by the ऊnaकोटी Challengers today is by Zavandia Dalong. First goal, and the second one was by the Calvin Dalong. And also now it is to see who has made his score. But also it is needless to say that Tambi also has scored from the part of the West Vikings. The West Vikings is into a very heavy pressure at this point of time, and they need to make changes in the way they play the game, because it's difficult for them now, because if the ऊnaकोटी Challengers are in the lead with 2 scores ahead, it's going to be tough for the West Vikings today. And what a match by this hunk that have been playing on the part of the ऊnaकोटी Challengers. It is needless to say that both the teams are strong enough, like we've seen in the previous games, by the West Vikings doing really great and making their scores. But today, I don't know, something or the other really is really sad on the part of the West Vikings today. And jersey number 17, Zavandia Dalong again made his second score. And let's see what happens. But no. The goalkeeper Solomon is really a lifesaver for the ऊnaकोटी Challengers today. He's been saving the ball from the goal and really doing great today. And so the West Vikings need to work harder today. This may not be a very good signal for the West Vikings, but they really need to pass small shots and make their scores today. And so, Soromita, let me also ask you something. You see, the ऊnaकोटी Challengers really doing great again after the second half, after the break, and have made the other score after the break. And the West Vikings still yet to, make another score this time.
it's sad from the part of the West Vikings today that they are not being able to make another score even in the second half. This is what an unfortunate for them opportunity, and they shouldn't be missing any opportunity at this time. That's really true. That's true, Milton ji. And what he actually said, बिल्कुल जो कि सही कहा है उन्होंने, क्या हो रहा है, what a match it is. Oh my God. कहते हैं जख्म जब लगता है तो मरहम की तरह कुछ चीजें काम करती हैं. कोई अगर साथ रहे तो वो काम करता है, कुछ खाना पीना अलग अलग चीजें. वैसे ही आज इस ऊनाकोटी चैलेंजर्स के लिए आज का ये गेम है वो मरहम. आज क्या रूप लेकर आए हैं, आई मस्ट से, पता नहीं क्या खा के आए हैं हमारे प्लेयर्स, किसको देखकर आए हैं आज हमारे प्लेयर्स. मस्ट से इट इज द डे फॉर देम. रियली व्हाट अ मैच. एंड यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स की तरफ हम देखें तो शायद आज उनका डे नहीं है, पर वहीं अगर हम देखें, आप देख पा रहे हैं ऊनाकोटी चैलेंजर्स, उनका एक इंजरी है. यहाँ गोलकीपर का एक इंजरी हम देख पा रहे हैं. बहुत बेहतरीन की है आज गोलकीपर की तरफ द्वारा, बहुत बेहतरीन सजगता दिखाई गई है, पर यहाँ एक इंजरी उनके द्वारा. प्लेयर चेंज यहाँ, 40 going in and 49 going out. West Vikings 40 going in and 49 out. सौरमिता देखिए, अगर ये चेंजेस अगर होते हैं तो अच्छे हैं. ये चाहते भी हैं कि इनके जो दर्शक है बाहर देख रहे हैं इस खेल को, वो चाहते हैं कि आज वेस्ट वाइकिंग्स का दिन हो. वो बहुत पीछे चले गए और इनको जरूरत है अभी आगे बढ़ के हिम्मत से लड़ने की, क्योंकि वक्त है. पर हिम्मत की जगह यहाँ एग्रेसिवनेस देख पा रही हूँ मैं मिथुन जी. अरे देखिए किस चीज की एग्रेसिव. देखिए यहाँ पर ओनुकुटी को अगर धकेलना है तो आपको आगे बढ़ना है. अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपके पास, तांबी है, नेथनियल है, और भी प्लेयर है आपके पास. डिफेंस अच्छा है इनका. वो खेल का प्रदर्शन जो उन्होंने पहले दूसरे मैदान पे दिखाया वो दिखाना चाहिए. बहुत ही अच्छा. नेथनियल के पास गेंद, नेथनियल को आगे, अच्छा फायदा यहाँ पर. गेंद कहीं डिफेंस के पैर पे लग के उछल गई बाहर. देखिए यही मैं कह रहा था, मौका है. और ये वो प्लेयर्स हैं जो आखिर के 5 मिनट में 2-2 गोल दागे थे. मुझे अभी भी याद है वो कुमलुंग के मैदान पे नेथनियल का लास्ट का 5 मिनट जो 2-2 गोल नेथनियल के पैर से आए थे. उनका वो स्पाइक का जो शॉट था ना, वो लोगों के दिलों तक घर कर गया था. क्या बोलेंगे? हर दिन शायद एक जैसा नहीं होता है मिथुन जी. यहाँ 2 का डिफरेंस मतलब बहुत बड़ी बात है. यहाँ एक इंजरी हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स के एक प्लेयर का. तो आज ऊनाकोटी चैलेंजर्स जितना बेहतरीन दिखा रहे हैं उतने इंजरीज भी हम देख पा रहे हैं. साथ ही साथ वेस्ट वाइकिंग्स जो आपने कहा, मिस्टर जेम जर्सी नंबर 22, उनके द्वारा भी अच्छा पासिंग आज हो रहा है. पासिंग बेहतरीन है, डिफेंस में थोड़ा और काम करना शायद बनता है. क्यों मिथुन जी? देखिए तांबी और नेथनियल में जिस तरह से डिस्कशन चल रहा है, जिस तरह से बातें चल रही है ना, तो ये बातों का एक मशवरा बनना चाहिए कि आप हमें पास दीजिए, हम लेके जाएंगे गेम को. और इस खेल को आगे ले जाने के लिए जरूरत है क्योंकि हमें आपस में तालमेल बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो वेस्ट विकिंग्स को वो पुशअप नहीं मिलेगा. और आपको अगर इस खेल में अगर अंक हासिल करने हैं तो आपको एकजुटता से खेलनी होगी, पासेस खेलने होंगे, आगे बढ़ने. देखिए यही मैं कह रहा था. देखिए ये प्रदर्शन, देखिए लंबा पास, अच्छा वहां पर प्रदर्शन विकिंग्स का. बहुत 10 नंबर के खिलाड़ी देखिए किस तरह से आगे गेंद को कॉर्नर साइड से राइट विंग से लेके जा रही है और ये आउट हो सकती है. जी हाँ, आउट हो गई है और थ्रो इन है आपका ओनुकुटी का. देखिए यही चाहिए था, यही रफ्तार चाहिए. इस रफ्तार से जब आप आगे जाएंगे तो गोल की संभावना बनती है. वक्त है, पर ये वक्त बड़ी जल्दी हाथों से निकल जाता है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं सेकेंड हाफ का हाफ टाइम हो गया है और कुछ ही क्षण में ये खेल खत्म हो जाएगा. और अभी भी ऊनाकोटी चैलेंजर्स भारी हैं यहाँ हमारे वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर. तो मिथुन जी, वेस्ट वाइकिंग्स को अभी बहुत मेहनत करनी है. लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि ये फुटबॉल है. फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है आखिरी कुछ मिनटों में. पर उस आखिरी कुछ मिनटों के लिए भी मुझे लगता है कि थोड़ी मेहनत तो जरूर चाहिए वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा. सौरमिता, मेहनत का जो फल है ना मिलता है, लेकिन थोड़ा देर होता है. यहाँ पर अच्छी है प्रयास. यहाँ पर फिर से देखिए, फिर से भाई साहब आपने वो गलती फिर से कर दी. और यही गलती का फायदा अभी वेस्ट विकिंग्स को लेना है
कि इस तरह से अगर चूक हो जाती है, इनसे गोल पोस्ट के करीब से निकल जाते हैं, मान लीजिए दुर्घटना घटते घटते रह गई, दुर्घटना हो सकती थी लेकिन एक्सीडेंट भाई हुआ नहीं, लेकिन इसका फायदा लेना है आपको। अच्छे कद काठी के एक प्लेयर है वेस्ट विकिंग्स से, सोरोमी था, इसी तरह से वेस्ट विकिंग्स को फायदा का लाभ उठाना चाहिए और गोल दाग देने चाहिए। वक्त है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अभी ये जो मिस था, ये वेस्ट वाइकिंग्स के लिए शायद कह सकते हैं सबसे बेहतरीन था, क्योंकि अगर अभी ये मिस नहीं होता तो एक लंबा डिफरेंस मिल जाता, लगभग 3 का स्कोर का डिफरेंस मिल जाता, जो कि लगभग असंभव है इतने कम समय में कवर करना। क्यों मिल्टन जी? जी हाँ, actually the West Vikings need really strong players in the team right now, and the combination in the team should be really stronger, because the players right now are not being able to run between the players, and there is hardly any striker of the West Vikings in between the boxes, and so they need to play really small passes and then push the ball into the box. Otherwise, it's going to be difficult. It's going to be difficult for the West Vikings. West Vikings. There's going to be a player change in the team of the West. The Onukuti Challengers. 60 in and 45 out. So this time I'm seeing that there is a lot of changes in the player, putting new energies. Good staminas in the team, and so that they can push the ball really fast, and they have good energy in the field. And so the West Vikings now have to make comeback in the field, so that they actually can make their second score. But I think the West Vikings still lacking behind with the energy in the ground, and players without wasting the time here and there, standing, loitering around, they need to actually run to the box and make the score. But I think this could be dangerous, but no. The Onukuti Challengers really push the ball back to the West Vikings again, and there is only one player with 2 players in the ground, and it's an offside by the referee here. यहाँ एक ऑफ साइड हुआ है जो हमारे रेफरी जी के द्वारा दर्शाया गया है। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहते हैं दर्शकगण जो हमें लाइव देख रहे हैं। आज TTAADC प्रेजेंट्स दिस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट। हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव, और फुटबॉल को इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा ऐसा हो रहा है कि फुटबॉल मैच हो रहा है जो हम ऑफलाइन, हमारे यहाँ दर्शकगण आप देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया में जिन्होंने हमें फॉलो किया है, TTAADC ऑफिशियल पेज को जिन्होंने फॉलो किया है वो सब देख पा रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 3 कमेंटेटर्स आज आपके साथ हैं। एक मैं हूं सौरभ मेहता, साथी है मिथुन जी एंड मिल्टन जी। तो आज के इस गेम में सबसे अलग बात मुझे मिथुन जी ये लग रही है कि पिछले जितने भी गेम थे उनमें सेकेंड हाफ में हम बार बार देखते थे कि टीम्स में कोई एक टीम थोड़ा भारी पड़ जाता था तो दूसरा वाला अगेंस्ट टीम वो थोड़े कमजोर पड़ जाते थे, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो हो जाता था। बट अभी तक मैंने वो सेम कॉन्फिडेंस देखा है फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड। अभी तक हमारे वेस्ट वाइकिंग्स एंड हमारे उनाकोटी चैलेंजर्स दोनों टीम्स में इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस, दैट्स अनबिलीवेबल। क्यों मिथुन जी? जी सौरमिता, ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन यहाँ पर अभी जरूरत है उस लेवल की खेल की जिसकी हमें आशा है वेस्ट विकिंग से, जो हम देख चुके हैं पहले। चाहे तंबी बोलिए, नेथनियल बोलिए, बिलाश बोलिए, अब कुमार डब्बामा बोलिए, ये सबसे वही आशा है। अभी सबकी आंखें अभी स्क्रीन पे है कि किस तरह का प्रदर्शन वो दिखाएंगे, क्योंकि आपको जो रफ्तार पकड़नी है ना वो पकड़ लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास। अगर नहीं निकल रहे तो आपके लिए मुश्किलों का सामना हो जाएगा पॉइंट्स टेबल में भी, क्योंकि आपने ऐसे प्रदर्शन किए हैं पहले और आपको सब लोग जानते हैं कि इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी स्किल के लिए जानी जाती है। यहाँ पर शायद एक फ्री किक मिली है। वक्त देखिए, वक्त बदलता है मिथुन जी, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर दिन है तो रात भी होता है, रात है तो फिर से दिन भी आता है, वक्त तो बदलेगा, पर आज देखना है कब बदलेगा मिथुन जी।
देखिए चांद भी निकल आया है, सूरज भी एक तरफ और चांद भी एक तरफ। तो ये तो गवाह है कि आज इस मैदान में कुछ तो होगा। कहते हैं कि चांद और सूरज का मेल काफी अजीब सा संगम है, दोनों ही देखने को मिल रहा है अभी। तो देखना है कि चांद और सूरज कितनी रोशनी देती है आज इस मैदान पर। दोनों की रोशनी इस मैदान पर है। चोट यहाँ पर दो खिलाड़ी को ओनुकोटी के, लेकिन नजरें फिर भी वही हमारे वेस्ट वाइकिंग्स पर। मिल्टन जी, इस मैदान का जो पूरा दामोदर है, अभी ये दामोदर जो प्रभाव है वो वेस्ट वाइकिंग्स पर है। क्या आप वो खेल का प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं जो आपने पहले किए थे? हमें वो खेल देखने को मिलेगा कि नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? Yes, actually, the West Vikings have already made a positive impact in the beginning of the game, in the previous games as well. And so there is so much of expectation from the West Vikings today. I think there's been a call for the stretcher right now. The Met team needs to pick the player out of the game and replace another player. But, you know, at this point of time, you see, the game today is really, really different, and it's really awesome to see. Like Mithunji and Soramati just said, that there is sun on the other side, then on the other side there is moon that's been seen. Likewise, there is two strong team who is of the top players of the TSL 2024-2025. TTAADC Super League 2024-2025 has brought some of the massive players in Tripura, and many are doing really, really awesome job. And I'm sure there is going to be many players that will come up from such matches, and they will be, sent for the betterment of the players in Tripura as well. So we will be, seeing more players from Tripura in the days to come. And so, like this kind of a game, it is first time in the history of Tripura, and TTAADC taking this initiative with the dreams of Bubagra, Product Kishore Manika, and also the initiative of the government of TTAADC and the sports department from TTAADC, Sri Suhail De Burma, who is the EM of the sports and current sports and ICA. Also, they since they are still very energetic and young, they understand the need of the hour, and bring up many new players, many youngsters in such field. This is an opportunity for the youngsters, not indulging in any other activities, any untoward activities, but in sports like this, in sports like football, cricket, and many other tournaments like badminton and others. This sort of initiative actually needs to be taken even by other ministers as well, so that they bring new talents in Tripura. And this is an opportunity, but no, what a save by the defense over there, and the West Vikings really pushing and putting pressure towards the Unukoti challengers today. But, luck sometimes don't favor. And this is another goal for the West Vikings. What a score. कहा था हमने, मिथुन जी, कहा था हमने कि दिन होती है तो रात भी होता है, वहीं रात होती है तो वापस दिन भी होता है। 3-2, जी हाँ, 3 उनाकोटी चैलेंजर्स, वेस्ट वाइकिंग्स 2। तो यहाँ प्लेयर चेंज हो रहा है, 16 आउट एंड 14 इन। तो यहाँ मिथुन जी, हमने कहा था आपको कि कुछ तो चेंज होने वाला है। वेस्ट वाइकिंग्स का जो पहले से जो अभी तक उनका जो एनर्जी है वो सेम रहा। आप देखेंगे कि किस तरह से पासिंग हुई, किस तरह से ये बेहतरीन शानदार शॉट्स दिए जा रहे हैं, एंड स्कोर्स कितना बेहतरीन हो रहा है। अब डिफरेंस 1 का है और बहुत जल्द ये भी क्रॉस होगा, आप देखिएगा। सोरुमित, एक बात डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। बात ये है कि ये मैच में ना सबसे ज्यादा प्लेयर चेंजेस हुए हैं, रिकॉर्ड है ये अब तक के मैच में सबसे ज्यादा प्लेयर चेंजेस हुए हैं और ज्यादा ओनुकुटी के हैं।
और इस तरह के अगर आप बदलाव करते जा रहे हैं, जरूर आप बड़ी रणनीति है, क्योंकि अभी वेस्ट विकिंग्स पूरी तरह से अपनी रणनीति बदल चुकी है। जिस तरह से अभी गोल हुआ ना, ये देखिए, मैंने कहा था, तम भी बोलिए, नेथनियल बोलिए, इन लोग ने जिस तरह से उत्तर का पलड़ा लेकर रखा है ना, वो अपना जो पूरा भार है अपने कंधे पे लेकर रखा है। सोरोमिता, ये आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है ओनुकुटी के लिए। पर यहाँ रणनीति हमारी जो उनाकुटी चैलेंजेस है उनकी भी कम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपने कहा कि इतनी बार जो चेंज हुआ है, जो प्लेयर्स चेंज हुए हैं, किसी कारणवश तो हुए हैं। नहीं, कारण आप यहाँ पर कारण दर्शाइए जरूर, लेकिन देखिए जो आपके ऑन फील्ड जो पहले के प्लेयर थे, आप विंडेड नहीं थे, वो उन्हें चोट नहीं लगी थी, आप उसे चेंज कर रहे हैं, तो जरूर कुछ आप सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन पहले से जो प्लेयर यहाँ पर वेस्ट विकिंग्स के हैं, वो काफी मझले हुए खिलाड़ी हैं। और एक बात याद रखिए, कपड़े को आप जितना धोएंगे उतना ही सफेद होंगे, उतने उसमें झाग आएंगी। तो ये वो प्लेयर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फिर से मौका था और मौका चूक गया, लेकिन देखिए मौका फिर आएगा। सोरोमिता, बिल्कुल मौका आएगा जरूर, पर आप शायद भूल रहे हैं अभी तक उनाकोटी चैलेंजर्स पलड़े में भारी है और हमारे पास समय अभी कम है। तो उनाकोटी चैलेंजर्स को जरूर अभी ये सोचना है कि या तो वो समय खत्म करें, पास करें, या फिर एक और एक गोल उनको लेना ही पड़ेगा, वरना शायद वो डिफरेंस। सोरोमिता, समय को आप किसी के भी आंचल में बांध लीजिए अभी, क्योंकि अभी मौसम बदलने वाला है। हर कोई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये फिर चूक गए, क्योंकि मैंने कहा मौसम बदलने वाला है। क्योंकि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपने क्योंकि बोल दिया, शायद इसीलिए ये चूक गया। अभी अगर आप क्योंकि नहीं बोलते तो शायद ये लग जाता। नहीं, बात ऐसी नहीं है। वेस्ट विकिंग्स अभी फुल ऑन फायर है। आप अभी फायर सर्विस की 600 गाड़ियां मंगा लो, वो जितना आग नहीं बुझा पाएगी, ये उतना आग लगा लेगी, क्योंकि अभी वो आग उनमें है। एक्चुअली अभी एक जो गोल उन्होंने किया है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि और कर सकते हैं, और टाई तो एटलीस्ट हो ही जाएगा अब अगर उनका रहेगा तो एक बार फिर से प्लेयर चेंज 22 इन एंड यहाँ 22 इन। वेस्ट विकिंग्स के प्लेयर को चेंज कर, जैसे मैंने कहा था, देखिए ये हाईएस्ट प्लेयर चेंज हो रहा है इस मैदान पर। लेफूंगा के मैदान आज इतिहास का गवाह बनेगी, क्योंकि इतने प्लेयर चेंजेस कहीं भी नहीं हुए। सैम 82 माइल गए, 60 अंदर जाएगी और 22 अंदर जाएगी, सॉरी, और 60 बाहर आएगी वेस्ट विकिंग्स के। तो ये मसला ये है कि इतने प्लेयर चेंजेस नहीं हुए, चाहे 82 माइल, चाहे हम कुमलुंग, चाहे हम किल्ला की बात करें, इतने प्लेयर आउट ऑफ 9 गेम्स, 9 गेम अभी तक हो चुकी हैं और इतने प्लेयर चेंजेस नहीं हुए हैं। रणनीति कहां है ये कोच बता पाएंगे, क्योंकि कोच के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है अभी, क्योंकि इस खेल में पॉइंट्स टेबल का लड़ाई हो रहा है। क्योंकि पॉइंट्स समरजीत वर्मा जो इनके टीम कोच है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जान सकते हैं, और उनके प्लेयर क्योंकि किस रणनीति के साथ अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि लाजमी भी है लाओ मिंगथांगमा, उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है। दोनों ही कोच बहुत ही कश्मकश में है। सोरोमिता, कश्मकश कहे या रणनीति कहे या उनका स्ट्रेटेजी कहे, अभी फिलहाल दोनों ही कोच चाहते हैं कि उनका टीम बेहतरीन करे, और जो मैं देख पा रही हूं दोनों ही टीम जबरदस्त खेल रहे हैं। मस्ट से इन 9 खेलों में दिस इज द 9th गेम ऑफ द TTAADC सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट में इस 9th गेम में कुछ कश्मकश के साथ साथ अलग चीज देखने को मिल रहा है कि सेकंड हाफ में इतना बेहतरीन प्रदर्शन गोल, ओह माय गॉड, मिथुन जी, एंड अ गोल वंस अगेन। देखिए मैंने कहा था कि वेस्ट विकिंग्स वो है जो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि तंबी का टाइम है, तंबी और कर सकते हैं, और इस खेल को का जो पूरा महकमा है ना वो बदल जाए। कुर्सी की पेटी बांधिएगा जरूर कि आज वेस्ट विकिंग्स का टाइम है। वेस्ट विकिंग्स का थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि गोल किसने झालर पे मारा है। For the first time in this 9th match, in this 9 मैचों में for the first time 3 each का टाई मिला है। That's super, that's marvelous, I must say 3 each का ये जो टाई मिला है ये जबरदस्त है, एंड आई एम वेरी डाउटफुल कि और मैचों में क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अब चाहिए हमारी टीम को एक और गोल, अगर वेस्ट वाइकिंग्स को जीतना है तो एक और गोल, और एल्स
ऊनाकोटी को जीतना है तो एक और गोल। अब तो टाई हो चुका है, तो अब देखना बनता है कौन जीतने वाला है। और जैसा कि मिथुन जी ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है इस गेम में, इस लेफोंगा स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ अब वेस्ट वाइकिंग्स को हम पहले सोच रहे थे कि एकदम फर्स्ट गोल उनका था और अब अचानक से 2 गोल एक साथ। अमेजिंग अमेजिंग। देवी और सज्जनों, आज यहाँ पर भर भर के गोल्स होंगे। जो मैंने कहा था कि जो मैंने कुमलुंग में देखा था वेस्ट वाइकिंग्स का फायर ऑन गेम, वो आज यहाँ पर है। आज इस मैदान पे तो आग लगेगी, मैंने कहा था। आप बुला लीजिए फायर ब्रिगेड को, बुला लीजिए किसी भी आग बुझाने वाली कंपनी को, ये आग नहीं बुझेगी, क्योंकि आग लग चुकी है वेस्ट वाइकिंग्स के अंदर। और झालर आज तोड़ के निकलेगा और गेंद कहेगी फायर ऑन। सौरमिता, वेस्ट वाइकिंग्स जीत सकते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ऊनाकोटी चैलेंजर्स को आप कम समझिए, क्योंकि मिथुन जी आपने देखा था पहले हाफ में इतना खूबसूरत प्रदर्शन हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स के द्वारा। अब भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ हमारे 3 ईच हो चुके हैं, ड्रॉ हो चुका है, एंड अब देखना है कौन किसका पलड़ा भारी होगा। दिस इज द 5th मैच ऑफ ग्रुप ए, 5वां मैच ग्रुप ए का एंड 9th मैच पूरे टूर्नामेंट का 9वां मैच है। एंड इस 9वें मैच में हम देख पा रहे हैं एक चीज बड़ा अलग है, दैट इज इतने स्कोर्स, इतने चेंजिंग ऑफ द प्लेयर्स एंड इतना बेहतरीन प्रदर्शन बाय बोथ द टीम्स। एक बार फिर से प्लेयर चेंज, 22 आउट 36 इन। देखिए यही जो चीजें हैं, अब इस खेल का जो पलड़ा है वो वेस्ट वाइकिंग्स की तरफ झुक चुका है। अभी देखिए, अगर यहाँ पर अच्छी रणनीति के साथ अंदर गए ना, अगर यहाँ पर अच्छे प्रदर्शन हुए, अपने पैरों का अच्छा सही इस्तेमाल किया ना, अच्छे पासेस हुए ना, तो वेस्ट वाइकिंग्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर अभी टैकल जो होगी ना गेंद की, वो देखना कहां तक होती है, क्योंकि अच्छी यहाँ पर शॉट है। यहाँ पर देखिए लंबा खींच दिया है, देखना किस तरफ ले जाती है। मिल्टन जी बहुत देर के बाद आए हैं, हवा लेके आए हैं, गर्म हवा, बताइए कुछ। Actually, you know, it is really interesting to see such match at the end of the game. You know, both the teams really pushing it hard this time, and you know, we have the JDOs of both the districts, and so they are along with us, sitting together. Both the West District ZDO and also the Unakoti District ZDO is also sitting along with us. The two teams, you know, as you look into their eyes, they are really focused in who's going to win the match today, because both the teams are really strong and are trying to make the goal through, and also it is interesting to see both the teams, you know, making the change in the player. Such a massive and aggressive game that has been seen by both the teams, the West Vikings and also the Unakoti Challengers. First time ever, so much of changes in the player in one match. And so again, Tambi is going for the goal, but no, the Unakoti Challengers really taking it really great with the ball, pushing the ball towards the West Vikings. Again, this is going to be a really awesome pass by the team. Small passes, nicely tackled, but this is out. And so, Soromita, let me ask you something. Likewise, like what we have actually spoken in the first few minutes of the second half. The game can change anytime, anywhere, and football is such a match that, you know, there's so much of pressure from both the team looking really strong and pushing the ball towards the goal post. These kind of a gameplay can change at any point of time like weather. बिल्कुल 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 सही कहा आपने मिल्टन जी। ये जो मिल्टन जी ने एकदम दर्शाया है, खूबसूरती से ये चेंज हो रहा है, वेदर की तरह ये चेंज हो रहा है। त्रिपुरा का वेदर आप सब जानते हैं, धूप के साथ साथ कभी कभी बारिश हो जाती है। आज ऐसा वेदर है कि आज धूप अगर वेस्ट वाइकिंग्स है तो वहीं बारिश है यहाँ हमारे ऊनाकोटी चैलेंजर्स, और एक साथ बरस रहे हैं दोनों। यहाँ जहाँ धूप की इतनी ताप है वहीं बरसात हो रही है ऊनाकोटी चैलेंजर्स के द्वारा। और ऊनाकोटी चैलेंजर्स, ओ माय गॉड, इतने हेडशॉट्स के बाद अब फिर से एक बार प्लेयर चेंज हो रहा है। इतने प्लेयर चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे गेमों में प्लेयर चेंज हो रहे हैं।
2 मिनट एक्सटेंड किया गया है यहाँ, 2 मिनट यहाँ एक्सटेंड किया गया है और अब बचे हैं सिर्फ 2 मिनट मिथुन जी, या तो टाई या तो कोई हमें एक विनर मिल जाएगा। एंड द परसेंटेज इज 50-50 क्योंकि दोनों का ही सेम है स्कोर। और सफल हैंडबॉल का इशारा यहाँ पर शुभज्योति सर जो रेफरी हैं, यहाँ पर फील्ड रेफरी उनके द्वारा, देखते क्या होता है। लेकिन देखिए एक बात है कि आखिर के जो ये पल मिले हैं ना, इस पल को काम पे लगाइए वेस्ट विकिंग्स, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ये मैच ड्रॉ हो जाए, बराबरी पे आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं चाहता, जो आपके प्रशंसक है वेस्ट के वो भी नहीं चाहेंगे कि आप एक गोल दागे, जो आपने रफ्तार पकड़ी है हाफ एन आवर के बाद, वो रफ्तार को आगे ले जाइए, एक गोल कीजिए अपने वेस्ट के लिए जो आपको इतना प्यार करते हैं, और उस सफलता की कुंजी को काम पे लगाइए। जो इतने दिन के आपकी जो अनुभव है, उस अनुभव को, जैसे तंबी हो गए, नेथानियल हो गए, ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनसे आखिर के वो पल महसूस होते हैं फुटबॉल के कि कुछ भी हो सकता है। मिल्टन जी। Yes, and all the eyes on Tambi at this point of time because he's going to shoot the ball into the box. Let's see what happens because he is, yes, Nathaniel and Tambi, both the players from West Vikings, really awesome player. And again, what a save by the team of Unukuti. Solomon doing really great, saving the ball on the part of the. On the part of the Unukuti challenges today. What a save today. Solomon, you must be appreciated for what you have done in the field today. And so, time is up. जी हाँ, नजरे अभी शुभज्योति सर के ऊपर क्या इशारा करते हैं, क्या सीटी लंबी खींचती है या फिर मैच का कुछ और कुछ पल के लिए। देखिए कि एक खेल का पलड़ा किस तरह से कहां जो उनुकुटी के पास ये खेल को जीतने के सारे चांसेस थे, उसको खेल की बराबरी पर ले आए। इसे कहते हैं विकिंग्स, वेस्ट विकिंग्स, जिन्होंने इस खेल का जो पूरा मायना है वो ही बदल दिया है। सही मायने में जो खेल है ना, वो आज यहाँ पर प्रशंसकों द्वारा देखी जो जा रही है ना, बाहर जो प्रशंसक बैठे हैं, सही मायने में अच्छे खेल का प्रदर्शन आज हुआ है यहाँ पर। क्यों सौरमिता, आप क्या कहेंगे इस बारे में? Definitely, it was a match. I must say, it was a match. मजा आ गया फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड। सबसे पहले जो पहला गोल था वो हमारे वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा, गिविंग अ पॉजिटिव वाइब, उनका वो सेम एनर्जी दिखा के कि हाँ हम जीतने वाले हैं। इसके बाद उसको एक टाई दे देना ऊनाकोटी चैलेंजर्स के द्वारा, फिर एक बढ़ोतरी करना ऊनाकोटी चैलेंजर्स के द्वारा, उनको एक चैलेंज देते हुए कि हाँ वेस्ट वाइकिंग्स आज हम तैयार होके आए हैं। एंड सेकेंड हाफ में फुल्ली चेंज हो जाना इस गेम का, दैट टू इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। It was a match, I must say, and इस मैच में कुछ तो मानना पड़ेगा कि हमारे दोनों टीम्स काफी भारी थे। हमारे अमेजिंग दर्शकगण को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग योर वंडरफुल, योर फेवरेट टीम्स। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जो दर्शकगण लाइव हमें देख रहे हैं। आज का ये मैच सच में शानदार था, सच में एक ऐसा मैच था जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड, अ पॉजिटिव मैच, एन अमेजिंग मैच, एन एनर्जेटिक मैच। क्यों मिथुन जी? जी बिल्कुल, जिस तरह से गोल का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से गोल दागे गए हैं, हर एक चीज। आप हाफ एन आवर के जो पहला सेशन था वो ओनुकुटी के पक्ष में था, दूसरा जो हाफ एन आवर के बाद का पक्ष था वो वेस्ट विकिंग्स का था। तो आज का दिन दोनों का ही था। जैसे आज मिल्टन जी भी कह रहे थे कि चांद और सूरज दोनों, सन मून का दिन, बिल्कुल वही आज यहाँ पर दोनों ही अच्छे खेल का दर्शन हुआ, यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन। मिल्टन जी। Yes, and with this we come to the end of today's match here at Lefungo Stadium, and it's really awesome to see such players. Both the teams so strong in the game, and there has been so many games that we have seen. At least eight matches we have seen in the past few days, and today the 9th match has recorded the highest change in the players, between the players in the team, and in both the teams, both from the Unukuti and also the West Vikings. Overall, both the team have performed really very well and have showcased the energy of football match, and this is how